DNA is only macromolecules that carries genetic information from one generation to the another generation, and it also stores the genetic information, and it is responsible for maintaining the identity of a species for millions of years. I mean to say it is a reserve bank of genetic information. जैसे कि हमें मालूम है whole of the story of the living beings that moves around the DNA के चारों तरफ ही मूव करती है, क्योंकि डीएनए का इतना स्मॉल अमाउंट होता है एक सेल के अंदर. अगर हम बात करें ना कि इट इज़ नियर अबाउट 10 रेज टू द पावर -12 ग्राम ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट इन ए सिंगल फीटल सेल. न्यूबॉर्न सेल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कितना स्मॉल अमाउंट है डीएनए का, बट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल. डीएनए के ऊपर ही हैं ऑल लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज, एक्सप्रेशंस, फंक्शंस, what we can say genetic transformation, information, all they are moving around the DNA. That is why it is right to say that DNA is central dogma of biology. Whole of the story moves around the DNA. In what manner? There are two main basic processes. DNA transcribes messenger RNA, and then by the process of transcription that we are going to study after some time, लेक्चर्स में पढ़ेंगे, एंड देन मैसेंजर आरएनए इज फॉर्मिंग द प्रोटीन बाय द ट्रांसलेशन प्रोसेस. दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट वी आर आल्सो गोइंग टू स्टडी इन डिटेल आफ्टर दिस टॉपिक, दैट इज रेप्लिकेशन. ऑन डीएनए इज आल्सो सिंथेसाइजिंग इटसेल्फ, दैट मीन्स रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ. एंड यही कहानी जो है, इट इज़ मेकिंग द डीएनए वेरी इंपॉर्टेंट और सोर्स और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल फॉर द लिविंग बींग्स. लिविंग बींग्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल ये बनाता है. एंड दिस इज वी कैन से rightly that DNA is central dogma of biology. Of course there are some organisms, जैसे कि कुछ वायरसेस हैं, उनमें एग्जाम्पल अगर हम लेना तो retroviruses. In those organisms the genetic information travels in a reverse manner. First of all, there is a RNA as a genetic material, and RNA by some process it forms the DNA, and then DNA से RNA transcription and translation occurs. I mean to say the first initiative step, that is RNA से DNA बनता है, जिनमें genetic material RNA होता है. ठीक है, तो RNA जब भी whenever we are going to discuss this RNA, then we will be repeating them in again this topic again, why there is a central dogma reverse. So abhi we should know कि what is central dogma of biology, that is DNA, and it is carrying genetic information. Moreover, there are three R's. There are three main basic processes that we can connect with the DNA. DNA से जो associated three main basic processes हैं वो क्या हैं, उनको हम 3R से symbolize कर सकते हैं. First we can say is replication, that we are going to study right now. What is replication or duplication? And second is recombination, that we are going to study in biotechnology में डिटेल से पढ़ेंगे. Recombination technology is due to the DNA. And third one is repair. Repair means कोई भी मरम्मत या डैमेज हो जाए, इंजरी हो जाए, that occurs due to DNA की ही हेल्प से ही होती है. और इनमें सब में what is a common feature, what are main common features we can say between these three R's. इन 3 R's के बीच में क्या common features हैं? एक तो DNA ही है, that means they I mean to say कि DNA, these three processes they act on the same DNA molecule. Same DNA molecule में ये act करते हैं, तीनों processes उसी के ऊपर चलते हैं. And second, whenever these processes are occurring, every time there is a breaking or union of phosphodiester bonds that are present within the DNA molecules. न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में शुगर फॉस्फेट जो बैकबोन का काम करते हैं डीएनए का, उन्हीं की ही ब्रेकिंग और ज्वाइनिंग से ऑल दीज प्रोसेसेस आर अकम्प्लिश्ड होते हैं. एट थर्ड वन, देयर आर लॉट्स ऑफ एंजाइम्स needed
because these processes are not simple processes, they are complex processes and they always need some associated structures in the form of enzymes. जिन enzymes की form में ज़रूरत होती है and these enzymes are almost similar भी हैं, कुछ difference भी हैं, we can say they are comparable. तो all these features make the DNA specific molecule and associated with 3 R's. ठीक है, so we start with the main topic, what is DNA replication and type of replication. ठीक है, तो DNA replication is a process. What happens? DNA is a big molecule, it is a long chain, it is a process. DNA molecule is making or duplicating its copies of DNA. It is a process in which DNA doubles itself. DNA copies, if there is one strand of DNA, then what happens during the duplication process? 2 strands of DNA are formed. One DNA molecule से जब 2 DNA molecules and both of these 2 strands they are identical to their parents. Parents से बिल्कुल identical होते हैं. When 2 identical copies are formed from a single DNA molecule, then only we can say DNA replication is there. DNA replication occurs. ठीक है? DNA replication means formation of 2 DNA molecules or 2 daughter cells that are identical to their parent DNA, and why there is a need of this DNA replication. As we know, whenever a cell is dividing into 2 and there is a need to divide the DNA also, so as each cell gets its own DNA for its survival and for maintaining its identity or whatever I told you just now. So that is why always there is a DNA copying. जैसे कि हम पढ़ते ही चले आ रहे हैं, DNA copying क्या होता है? Duplication of DNA or making of double copies of DNA, as this is a parent DNA. I have shown you. आज हम main DNA replication पढ़ने जा रहे हैं. That is why I draw it main on the board so that all the processes are associated with this type of DNA replication. क्योंकि हम देखेंगे जो भी sequences हैं DNA replication में procedure हैं that are all are moving around in such kind of strands that I have drawn on the board. So the parent DNA is there and we have seen there are 2 daughter. These are daughter DNA have formed. Daughter DNA. This is also a daughter DNA. So we have come to know that DNA replication. So we move further. अब DNA replication की type क्या है? What kind of replication is there? Of course, you all know. Again, the semi-conservative replication is there in DNA. What does it mean? If there is a parent molecule having 2 strands and these 2 strands they are complementary to each other. As we have known in our structure of DNA, if we talk about the complementarity rule, so we will be knowing that always we know that there are some specific base pairs. One purine combines always with one pyrimidine, or adenine always combine with thymine and cytosine with guanine in case of DNA की structure की बात करें, and this is called the complementary base pairing. तो this complementary base pairing से 2 strands जितने भी हैं ये 2 strands of DNA they are joined with each other. एक दूसरे से क्या हुए हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेल्प से ज्वाइन हुए हैं. ये मैं अभी ऑल ऑफ द पार्ट में नहीं बनाऊंगी, बट होल ऑफ द सीक्वेंस इज लाइक दिस. वन प्यूरिन इज देयर, वन pyrimidine is there, and whenever DNA replication occurs, then what happens? One parent strand is conserved and according to the complementarity, पेरेंट स्टैंड तो ओरिजिनल होता ही है, उसके कॉम्प्लीमेंटरिटी यानी कि उस टेम्पलेट स्टैंड को देखते हुए डॉटर स्टैंड्स आर फॉर्म. दिस इज अ पेरेंट स्टैंड that I have drawn it with the help of blue marker. This is a parent strand and this strand is daughter which is newly synthesized. Newly formed strand is daughter. Newly synthesized हम कह सकते हैं.
तो in this clearly we are looking at one parent strand is there which is conserved and one new daughter strand is formed by accumulation of various nucleotides or raw materials, or we can say nitrogenous bases, mainly adenine, thymine, cytosine, guanine. All these things are present in nucleoplasm. कहाँ होती है? न्यूक्लियोप्लाज्म में ही होती है. ठीक है. तो उससे जो भी बेसिक प्रोसीजर अब हम जानने की कोशिश करेंगे, तो उससे जब नया स्टैंड बनता है तो दैट स्टैंड इज डॉटर स्टैंड एंड द वन ओरिजिनल पेरेंट स्टैंड इज देयर विच इज कंजर्व. तो in this manner we have seen one strand is formed on this side, and in the similar manner the second identical strand we have seen is formed also. I mean to say one parent strand has given rise to two daughter strand. Two daughter strand दिए, और in which daughter strands means daughter DNA molecules they have given. And if we talk about these strands, by mistaken I told you strands, लेकिन आप समझ जाओ कि one DNA molecule is giving rise to two DNA molecule and each DNA molecule is having two strand. एक DNA molecules में जब दो strands फिर से बनेंगे तो one is parental strand and the one formed is newly synthesized strand which is daughter strand. इधर भी एक strand दो बने ना, तो उसमें से one is this is the parental strand and this is the daughter strand. This is parental strand and this strand that I have marked it is daughter strand. Clear? So clearly we are looking at these daughter DNA strand, and this is showing the replication process, and it is occurring with very high fidelity, or we can say high efficiency. If there is any change or any error occurs, immediately it is removed by the DNA or various enzymes that are associated with this synthesis. वो हम देखेंगे बाद में कौन सी होते हैं, और क्योंकि हमें मालूम है changes can be harmful for the DNA. ठीक है, वो changes harmful हो सकते हैं, even they are fatal for the species के लिए fatal भी हो सकते हैं. तो there are two main things required. One thing is this process should be highly efficient. High fidelity should be there, or there should not be any error. So one thing is it should be highly efficient. Efficient होगा ये process. Efficient होगा so that there are lots of enzymes that are associated with it. And second, no error, or if there is any error occurring, it can immediately be removed during the mechanism of DNA semi-conservative replication. Or there were scientists, they discovered the semi-conservative replication. We should know them also. जैसे कि starting में there was Watson and Crick. He proposed the double helical structure. Watson and Crick got the James Watson and F.C. Crick. They got the Nobel Prize of DNA formations of DNA की स्ट्रक्चर, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर थी ना, 1952 में ही उन्होंने प्रूव किया था. और साइमल्टेनियसली व्हेन दे वर लुकिंग एट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस DNA, दे आल्सो सॉ द रेप्लिकेशन प्रोसेस एंड दे आल्सो कंक्लूडेड दैट द DNA रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव. तो वॉटसन एंड क्रिक ने ही कहा कि दे डिस्कवर्ड दैट. तो दिस क्रेडिट आल्सो goes to them that DNA replication is semi-conservative. DNA replication is semi-conservative. किसने बोला? सबसे पहले डिस्कवर किया वॉटसन एंड क्रिक ने. Later on it was also proved experimentally. Experimental verification. There were two scientists. कौन कौन से थे? Matthew Michelson. There were scientists Matthew Michelson and Franklin Stahl. They also proved experimentally by radioactive techniques से. वो हम डिस्कस करेंगे उस एक्सपेरिमेंट को. इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन आवर चैप्टर, करिकुलम में है. दैट दे विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन आफ्टर दिस रेप्लिकेशन. तो मैथ्यू मिचेल्सन ने और फ्रैंकलिन स्टार ने
एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया अगेन that DNA replication is semi-conservative. Moreover, when there were scientists, they tried their best. जैसे कि हरगोबिंद खुराना जो हमारे हैं, they formed the DNA, हरगोबिंद खुराना, in lab condition में बनाया उन्होंने किसको, DNA को लैब में वाइट्रो सिंथेसिस की DNA की, ठीक है. Again there were more scientists. Korenberg, again he formed in lab. One was associated with template independent and someone was associated with template dependent. तो अभी मेरे को इतना माइंड में नहीं. आई थिंक हरगोबिंद खुराना ने टेम्पलेट इंडिपेंडेंट टोटली सिंथेटिक मटेरियल अडॉप्ट किए थे डीएनए की रेप्लिकेशन, डीएनए स्टैंड को बनाने के लिए. एंड कोरेनबर्ग दे फॉर्म्ड दी स्टैंड इन ए टेम्पलेट डिपेंडेंट. नाउ व्हाट इज दिस टेम्पलेट डिपेंडेंट और टेम्पलेट इंडिपेंडेंट क्या होता है? इसमें व्हाट वी हैव सीन, इफ दिस इज वन पेरेंट स्टैंड, जब भी नया रेप स्टैंड बनता है ना, तो उसको देखते हुए कौन सा बनता है, नया स्टैंड बनता है पेरेंट स्टैंड को. तो दैट स्टैंड, पेरेंट स्टैंड इज कॉल्ड दी what we call it is a template stand. So in this manner we can say DNA molecule whole was synthesized, and they also proved that they could saw that semi-conservative mode of replication was there, although Hargobind formed it totally synthetically. One more scientist was there, he formed Okova, RNA molecule बनाया. तो ये भी टॉपिक आएगा जब RNA हम पढ़ेंगे, ठीक है. He formed RNA in lab condition by the help of some Swiro-Okova enzymes that we are going to study later on. So this proves that by the experimental verification से भी प्रूव हो गया कि DNA replication is semi-conservative. What is a semi-conservative replication? एक बार फिर से बता रही हूँ मैं आपको. Whenever there is a replication or duplication of DNA is occurring, and if it is a parent strand and there are two daughter DNA molecules are formed from one parent strand, then what will happen? Parent strand will be conserved in the newly synthesized strand DNA molecule. Newly synthesized molecule में one parental strand will be conserved and one will be new, which will be the daughter, and it will be on the basis of rule of complementarity. Parent के strand को देखते हुए ही आगे जो strand होगा वो बनेगा on the basis of complementarity. Clear? So this is semi-conservative replication. Now we move further. What is initiation of replication? अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन में. एक्चुअल मैकेनिज्म तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. तो इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, आई टेल यू फर्स्ट, आई जस्ट rub it and then tell you. So we see now in what manner starting जो whatever mechanism of replication is there. So first of all we should know initiation of replication occurs. In what manner initiation of replication occurs? It occurs at some specific site which are called the ORI site. ORI site are specific sites which are called the origin of replication site. Origin of replication site. Origin of replication site. अब ये साइट क्या होती है? स्पेशल होती है. जैसे कि अभी तो हम बेसिक प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन का देख रहे हैं, दैट इज ऑकरिंग इन prokaryotes as well as in eukaryotes, and these basic procedure is similar in both cases. Similar होता है, although there are some complexities and lots of other enzymes that are associated with replication in eukaryotes. Eukaryotes में थोड़े सी कुछ और complexity बढ़ जाती है, but basic procedure जो है ना, that is similar. And this time we are taking the example of, we can say, prokaryotic replication mainly. तो mainly prokaryotic replication में what happens? तो because it is a little bit easier, but basic process is similar in both cases, as it is mentioned in our NCERT that replication in prokaryotes कैसे होती है. That is why I am just telling you. First of all, I was talking about the ORI site. क्या होती है? Origin of replication site is a specific site which is adenine and thymine rich site. एडेनिन एंड थाइमिन रिच साइट होती है. उस साइट पे स्पेसिफिक ओरिजिन
ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स। वो एंजाइम्स जो भी हैं दैट वी विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज दिस साइट इज हैविंग सम स्पेसिफिक एडेनिन थायमिन रिच सेगमेंट्स हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होगी ओपनिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स विल बी देयर विद द एसोसिएशन ऑफ सम एंजाइम्स सच एज हेलिकेसेस आर देयर एंड लॉट्स ऑफ अदर एंजाइम्स दैट आर एसोसिएटेड विद। तो इस तरह से ये एक रेप्लिकेशन स्पेसिफिक साइट पे होता है दैट इज कॉल्ड द ओरी साइट एंड इट इज ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम इज एडेनिन थायमिन रिच साइट होती है। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बाद इफ वी सी अबाउट द रेप्लिकेशन प्रोसेस इन केस ऑफ कंपेयर करते हैं प्रोकैरियोट्स में एज वेल एज लीनियर मॉलिक्यूल इन डीएनए, देयर स्टार्ट्स फॉर्मिंग द फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन बबल। अब ये रेप्लिकेशन बबल क्या होते हैं, जस्ट आई टेल यू। जहाँ पे भी रेप्लिकेशन इन्वॉल्व होनी होती स्टार्ट होती है ना, जैसे ओरी साइट पे, वहाँ कुछ बबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। जैसे कि अगर हम ई कोलाई बैक्टीरिया की बात करें तो इट इज़ बैक्टीरिया का जो डीएनए मॉलिक्यूल है इट इज़ ए सर्कुलर मॉलिक्यूल। सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है और एट ओरी साइट पे इट्स लिटिल बिट ओपन हो जाता है। जैसे कि अगर हम ये एक स्ट्रक्चर लें ओपन एंड का क्लोजली एसोसिएटेड, तो एक सिंगल रेप्लिकेशन बबल बनता है, किसमें, सिंगल रेप्लिकेशन बबल दैट ऑकर्स इन प्रोकैरियोट। जैसे कि हमें मालूम है प्रोकैरियोटिक में डीएनए, अगर हम ई कोलाई की बात करें ना, तो 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर्स होते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट है और इनमें रेप्लिकेशन भी वेरी फास्ट होता है, 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड। आई मीन टू से इतने फटाफट एक सेकंड के अंदर 2000 बेस पेयर्स नए बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन, जो ये डबल स्टैंडर्ड हमारा मॉलिक्यूल है सर्कुलर, एकदम से जो इनका डॉटर बनेगा ना मॉलिक्यूल, दैट विल बी ऑल्सो स्टार्टेड फॉर्मिंग इमीडिएटली विद इन 18 सेकेंड्स। आई मीन टू से 18 मिनट्स के अंदर नया मॉलिक्यूल बन जाता है, इतना फास्ट ये प्रोसेस है। एंड ऑफ कोर्स इट ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ वेरियस एंजाइम। बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए, मैं आपको बता रही हूँ, और वो एंजाइम्स सभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो और भी बहुत सारी एसोसिएटेड थिंग्स चाहिए, तो वो सब मिलाकर रेप्लिकेशन क्या बनता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर बन जाता है। ठीक है, तो अभी मैं जैसे आपको बता रही हूँ ना, आप वैसे वैसे आप माइंड में रखते जाइए ताकि आपको एकदम से क्लियर बेसिक मैकेनिज्म पता लग जाए कि रेप्लिकेशन का क्या है, और एनसीईआरटी का जो वॉट एवर हैज बीन मेंशन वो क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी कि डीएनए जैसे सर्कुलर होता है किसमें, बैक्टीरिया के अंदर, और देयर आर लॉन्ग चेन लीनियर मॉलिक्यूल होता है यूकैरियोटिक। लीनियर मॉलिक्यूल्स और बहुत सारे होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो 6.6 10⁻⁹ बेस पेयर्स होते हैं। इसमें रेप्लिकेशन थोड़ा सा स्लो होगा, बट इट नीड्स फास्टनिंग आल्सो। नियर अबाउट 200 बेस पेयर्स पर सेकेंड्स जो होते हैं ना, इसमें नए बनते हैं। एंड इट रिक्वायर्स कितने, 8 से 10 घंटे में इनकी रेप्लिकेशन, न्यू डीएनए मॉलिक्यूल की जो सिंथेसिस होती है ना, इट टेक्स 8 to 10 hours। इंस्टेड इन केस ऑफ बैक्टीरिया नियर अबाउट रेप्लिकेशन टाइम इन विच डीएनए मॉलिक्यूल्स डबल्स इटसेल्फ इज 18 to 20 minutes। कितनी जल्दी हो जाता है, किसके कारण, क्योंकि इसमें क्या है, स्मॉल अमाउंट है और सर्कुलर है। और मैं बात कर रही थी रेप्लिकेशन बबल की, जहां पे भी ओराई साइट सेलेक्ट करते हैं ना एंजाइम्स, तो वहां पर व्हाट हैपेंस, एक बबल लाइक, वो थोड़ी सी खुल जाती हैं, तो एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोसेस, एंड दिस इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन बबल। इन केस ऑफ बैक्टीरिया देयर इज ए सिंगल रेप्लिकेशन बबल फॉर्म, सिंगल बनता है। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, मैंने आपको बोला है कि बहुत लॉन्ग चेन लीनियर मॉलिक्यूल है डीएनए का, और बहुत फास्टली रेप्लिकेशन चाहिए क्योंकि इट्स सेव्स टू टाइम। फास्टली रेप्लिकेशन के लिए व्हाट हैपेंस, एक बबल से तो काम नहीं चलेगा ना, तो व्हाट हैपेंस, देयर आर सेविलर, बहुत सारे मल्टीपल रेप्लिकेशन बबल्स बन जाते हैं। मल्टीपल रेप्लिकेशन बबल्स आर फॉर्म्ड, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। आई मीन टू से कि सम स्पेसिफिक साइट्स, ओराई साइट्स को देखते हुए, जैसे हम अगर इसमें ओराई साइट की बात करें ना, तो सेंट्रल में से पॉइंट ऑफ ओरिजिन लेते हैं, दिस इज ए रेप्लिकेशन। जैसे कि हम इस बबल को देखेंगे और इसका हाफ पार्ट कंसीडर मान लो करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ आपको लेंथ बना देती हूँ, तो हाफ पार्ट इज जस्ट लुकिंग लाइक रेप्लिकेशन फोर्क,
वो रेप्लिकेशन फोर्क क्या होता है और बेसिक मैकेनिज्म उसी से ही एसोसिएटेड है, वो तो अब हम देखते ही देखते हैं। तो इससे हमें क्या प्रूव हो रहा है कि ये जो रेप्लिकेशन बबल है इट इज फॉर्मिंग, कैसे बन रहा है, बहुत सारे बन रहे हैं, सो दैट द रेप्लिकेशन शुड बी वेरी फास्ट होना चाहिए, और बनता भी है क्योंकि हमें मालूम है वन पेरेंट स्ट्रैंड इज देयर। पेरेंट स्ट्रैंड की हमें जितने भी बेस पेयर्स की अरेंजमेंट मालूम है, दे आर एट ए स्पेसिफिक पोजीशन, और जो नया बनेगा स्टैंड वो एज कम हमें क्या पता होगा उसने नए स्टैंड ने कैसे बनना है, इट इज टू बी फॉर्म्ड कॉम्प्लीमेंटेरिटी टू अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंटेरिटी रूल। स्पेसिफिक बेस पेयरिंग है तो बहुत ईजी हो जाता है जब बहुत सारे रेप्लिकेशन बबल्स बने, क्योंकि ऑलरेडी वी नो पेरेंट स्टैंड तो पता ही है, उसके अकॉर्डिंगली नए नए नाइट्रोजन बेसिस हमने उसको देखते हुए तो हमने रखने हैं। जैसे कि वी नो द मैप ऑफ ए थिंग, एक मैप हम पहले बना लेते हैं मकान को बनाने के लिए, हाउस को बनाने के लिए, तो उसको देखते हुए इजीली बन जाता है ना। द सेम इज हेयर, तो दैट इज व्हाई दीज मल्टीपल रेप्लिकेशन बबल्स दे आर जस्ट to form the new DNA molecule within a short period of time because it needs in eukaryotes में इसकी जरूरत होती ही है। प्रोकैरियोट्स में तो सिंगल रेप्लिकेशन बबल है, उसके कारण फटाफट एकदम से रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है। आई मीन टू से नया डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल इज सिंथेसाइज्ड, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स व्हाट हैपेंस, मल्टीपल रेप्लिकेशन बबल्स आर फॉर्म्ड एंड अल्टीमेटली व्हाट दे आर गिविंग राइज टू, उन्हीं की मैकेनिज्म में जो भी होगा इसमें what we can say two daughter molecules of DNA are formed, one is parental, one is daughter, one is parental, one is daughter। जैसे ये हमने लिए हैं उसके अकॉर्डिंगली वन पेरेंटल है तो उसका डॉटर पिंक कलर का बनाया मैंने, इफ इट इज पेरेंटल रेड इन कलर तो वी हैव मेड वन डॉटर इज ब्लू इन कलर। तो टू स्ट्रैंड्स बनते हैं, ये तो हमें मालूम ही है। एंड सेकेंड थिंग व्हाट वी हैव टू कंसीडर दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल। डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है ना बाई डायरेक्शनल होती है, रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल, दैट वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ, प्रूव विद द हेल्प ऑफ दीज रेप्लिकेशन बबल्स। जैसे कि अगर हम एक बबल यहाँ बनाएं, इसको ऐसे बनाएं बहुत बड़ा सारा, तो इसकी डायरेक्शन देखने के लिए एक तो हमें ये देखना है कि ऑलवेज रेप्लिकेशन ऑकर्स फ्रॉम, कहाँ से होती है, इट ऑकर्स फ्रॉम विच एंड टू द विच एंड, इट ऑलवेज ऑकर फ्रॉम क्लोज एंड, सॉरी ओपन एंड टू दी क्लोज एंड। जैसे जहां ये बबल खुला है ना वहां से इस तरफ होगी, इस तरफ होगी, और अब इधर का भी ये बबल ओपन नजर आ रहा है तो इधर से इधर होगी। आई मीन टू से जीपर लाइक फैशन में जैसे जैसे एंजाइम हेलिकेज ओपन करता जाएगा वैसे वैसे रेप्लिकेशन इधर भी होगी और इधर भी होगी, सो दैट टू मेक द प्रोसेस ए वेरी फास्ट। तो दैट इज व्हाई वी कैन से डीएनए रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल क्यों है कि इट इज ऑलवेज occurring from open end to the close end, तो bidirectional always from open to close end। क्लियर? तो अब ये दो चीजें आपको समझ आ गई कि डीएनए रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक साइट पे होता है और इस साइट, एंड देयर आर रेप्लिकेशन बबल्स फॉर्म्ड। वो रेप्लिकेशन बबल्स क्या होते हैं, सिंगल होता है प्रोकैरियोट्स में एंड देयर आर मल्टीपल, ताकि जल्दी से हो प्रोसेस। और बाई डायरेक्शनल फ्रॉम ओपन टू दी क्लोज एंड, जैसे जैसे वो डीएनए क्लोज एंड को खोलता चला जाएगा वैसे वैसे रेप्लिकेशन भी होता चला जाएगा, एंड ऑलवेज ऑकर्स इन 5-3 डायरेक्शन। वो तो हम मैकेनिज्म में देखेंगे। अब हम देखते हैं व्हाट आर वेरियस एंजाइम्स that are associated with, और मेन एंजाइम्स क्या है, इनिशिएशन कैसे हो रही है। आई मीन टू से वी स्टार्ट विथ, आई एम टॉकिंग अबाउट द आरएनए प्राइमर and the RNA polymerase and DNA polymerase, that are main enzymes of this.